Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is Introduction to MS Word 2016. Objectives of learning: to know about MS Word, to learn about component of MS Word window to create new document. We know that in a notebook we write using a pen, but on the computer we type text in a software called MS Word or Microsoft Word. MS Word is a word processor which allows us to type in a simple and efficient way on a computer. The word processor is an application software which helps in typing and formatting text on computer. The process of typing using word processor is regarded as word processing. तो आपकी जितनी भी चीज़ें होती हैं, अगर आपको रियल में लिखनी होती हैं तो आप एक पेपर या पेन का यूज़ करते हैं या फिर नोटबुक का यूज़ करते हैं. सिमिलरली आपको कंप्यूटर में अगर लिखना होता है तो MS वर्ड या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसे कहते हैं आप उसका यूज़ करते हैं. तो इसमें जितने भी आपको लेटर्स टाइप करने होते हैं, टेक्स्ट टाइप करने होते हैं, वो सारी चीज़ें आप इसमें टाइप करते हैं. वर्ड प्रोसेसर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है विच लेट्स यू राइट द थिंग्स एंड दिस इज रिगार्डेड एज वर्ड प्रोसेसिंग. Following are some word processing software: MS Word, WordStar, WordPad, OpenOffice Writer, PageMaker, WordPerfect. We shall read about MS Word 2016. Starting MS Word 2016. To start MS Word, follow the given steps. Step 1. Click on the Start button on the taskbar. Step 2. From the Start menu, scroll down to W and select Word. Step 3. The given screen appears. Now, click on the blank document option. The MS Word 2016 appears which has various components. तो आपको अगर MS Word 2016 को ओपन करना है तो सबसे पहले आपको टास्क बार पे जो स्टार्ट बटन है उस पर क्लिक करना है. स्टार्ट मेन्यू आ जाएगा, उसमें W को आप स्क्रॉल करते करते नीचे तक आएंगे और वर्ड को सिलेक्ट करेंगे. After selecting the word, एक स्क्रीन अपीयर हो जाता है. Now you have to click on the blank document option. जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जो MS Word 2016 है वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं. Do you know Word was first released in 1983 by the name Multi-Tool Word. तो Word सबसे पहले 1983 में रिलीज हुआ था. इसका नाम पहले था Multi-Tool Word. Word application opens a blank document with the name Document 1. It shows a blinking cursor on the top left side of the window. Now, MS Word displays two windows. The larger one is termed as Application Window and the smaller one is termed as Document Window. Here, Application Window is used by the user to connect with the MS Word program, and the Document Window is used for typing, editing and फॉर्मेटिंग द कंटेंट. तो आपका जो वर्ड एप्लीकेशन है ये एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर देता है विद द नेम डॉक्यूमेंट 1. उसके बाद आपका जो MS वर्ड होता है दो टाइप की विंडो को डिस्प्ले करता है. एक होता है आपका एप्लीकेशन विंडो और दूसरा होता है आपका डॉक्यूमेंट विंडो. एप्लीकेशन विंडो आपकी बड़ी विंडो होती है और डॉक्यूमेंट विंडो आपकी छोटी विंडो होती है. जहां पे आपका एप्लीकेशन विंडो होता है वो आपको MS वर्ड से कनेक्ट करता है, जोड़ कर रखता है. ऑन दी अदर हैंड जो आपकी डॉक्यूमेंट विंडो होती है उसके थ्रू आप टाइपिंग कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं और आपका जो भी कंटेंट है उसको फॉर्मेट कर सकते हैं. Components of Word 2016 window. Let us learn about the various components of Word 2016 window. Following are the different components of MS Word 2016. Components: description, quick access toolbar. This is located on the extreme left of the title bar. It holds various frequently used buttons. Title bar. The topmost bar of the window is called title bar. It displays the program name as well as current document name. Windows control buttons. There are 3 control buttons present on the right of title bar. They are minimize, maximize or restore, down, close. Tabs. Tabs are placed below the title bar. They contain various commands that are used to work in the MS Word. Ribbon. It is divided into tabs which are further divided into groups. Each group has a number of options that are used in Word.
Status bar, it provides information regarding page number, word count, language page layout, and zoom slider. Work area, it is the area in the document where you can type the text. Cursor, it is the small blinking vertical line in work area where the text will be typed. Scroll bars are used to view the hidden area of the document. There are two types of scroll bars, horizontal and vertical. The horizontal scroll bar is used to scroll the page left and right, whereas vertical scroll bar is used to scroll the page up and down. तो आपका जो MS Word 2016 है उसके काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि सबसे पहला आपका आ जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। या आपका अपर लेफ्ट कॉर्नर पे टाइटल बार के पास में होता है। इसमें आपके अलग अलग जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड बटन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। देन कम्स योर टाइटल बार। टाइटल बार आपका विंडो का टॉप मोस्ट आपका बटन होता है या फिर एक डिस्प्ले होता है जिसमें आपका टाइटल नेम लिखा होता है, प्रोग्राम का नेम भी यहीं पर मेंशन होता है। फिर आपका आ जाता है विंडो कंट्रोल बटन्स, जिसमें आपकी मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, डाउन और क्लोज करने के ऑप्शंस आपको गिवन होते हैं। देन कम्स योर टैब्स। टैब्स जो होते हैं वो आपके टाइटल बार के नीचे प्रेजेंट होते हैं। जितने भी आपके कमांड्स यूजुअली आप वर्क करते टाइम यूज करते हैं MS वर्ड में, वो यहीं पर प्रेजेंट होते हैं। Then comes your ribbon. रिबन जो होता है इट इज डिवाइडेड इनटू टैब्स, जो कि फर्दर आपके अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं और इसमें आपके अलग अलग ऑप्शंस होते हैं जो वर्ड में आप काम करते हुए यूज कर सकते हैं। देन कम्स योर स्टेटस बार। स्टेटस बार में आपके अलग अलग टाइप की चीजें होती हैं, जैसे आपका वर्ड काउंट होता है, पेज नंबर होता है, कौन सा लैंग्वेज पेज लेआउट है, ये सारी चीजें आपकी स्टेटस बार में प्रेजेंट होती हैं। देन कम्स योर वर्क एरिया। ये आपका वो डॉक्यूमेंट होता है जिस पे आप काम कर रहे होते हैं। देन कम्स योर कर्सर। ये एक स्मॉल लाइन होती है जहां पे आपकी ये ब्लिंक करती रहती है, जहां पे आपका नेक्स्ट लेटर या वर्ड टाइप होना होता है। देन कम्स योर स्क्रोल बार्स। आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो टाइप के स्क्रोल बार्स होते हैं। जो आपका वर्टिकल स्क्रोल बार होता है वो अप डाउन करने के लिए यूज होता है। हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार जो होता है वो पेज को लेफ्ट और राइट मूव करने के लिए होता है। Creating a new document. For creating a new document, follow the given steps. Step 1. Click the File tab and the Backstage view appears. Step 2. Now select New option. Step 3. Choose the blank document. The new document opens. तो अगर आपको कोई एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, सबसे पहले आप फाइल टैब पर जाएंगे और बैक स्टेज व्यू आपका अपीयर हो जाएगा। द नेक्स्ट ऑप्शन आपको न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। न्यू ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट चूज करना है। जैसे ही आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट चूज कर लेंगे आपका न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। एंटरिंग द टेक्स्ट. For entering text in MS Word, double click at the position where you want to start and type text by pressing keys using the keyboard. While typing text, the cursor moves forward by default. To start a new line, press the enter key. अगर आपको कोई एक टेक्स्ट को एंटर करना है तो MS Word पे जाके जहां भी पोजीशन पे आपको एंटर करना है, टाइप करना शुरू करना है, वहां पे आप डबल क्लिक कर दीजिए और वहां से अपनी कीज को प्रेस करना शुरू करिए तो राइट वर्ड डायरेक्शन में मूव होती रहेगी और आपका टेक्स्ट टाइप होता रहेगा। एक्टिविटी. इन MS Word, type a notice given below. Book fair. Dear students, the school is organizing a book fair in the campus on 1st January 2000 something. Kindly come and join the fair at 11 AM with your parents. Thanks. तो आपको MS Word पे जाके नीचे जो आपको एक नोटिस गिवन है, आपको यही सेम नोटिस टाइप करना है। Deleting the text. Using the delete or backspace key, we can delete the text. To delete a character, place the cursor to the left of the character to be deleted and press delete key, or bring the cursor to its right and press the backspace key. For deleting a word, select the word and press delete key. For deleting any piece of text, select the text by dragging the mouse and press delete key. तो अगर आपको कोई भी चीज को डिलीट करना है तो सबसे पहले आप बैकस्पेस की का या फिर डिलीट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई एक कैरेक्टर डिलीट करना है तो आप डिलीट की को भी आप कर्सर के पास लेकर आ सकते हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका डिलीट हो जाएगा, या फिर आपका जो बैक स्पेस का बटन है उसको भी आप क्लिक करते रहेंगे तो आपके कर्सर से लेफ्ट हैंड साइड पर जितना भी मटेरियल है वो ऑटोमेटिकली डिलीट होता रहेगा। उसके बाद अगर आपको एक वर्ड डिलीट करना है तो सिलेक्ट द वर्ड और उसके बाद आप डिलीट की पे प्रेस कर दीजिए। आफ्टर दैट अगर आपको एक पीस ऑफ टेक्स्ट डिलीट करना है तो आपको पूरा का पूरा टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट कर लेना है ड्रैग करके और उसके बाद डिलीट पे क्लिक कर दीजिए।
Saving a document. After completion of typing work, we can save the document in the MS Word file in the following way. Step 1, click on the File tab. The backstage view appears. Step 2, now click on Save As option. Step 3, you have to select the location where file has to be saved. Step 4, the Save As dialog box appears. Step 5, in the file name box, enter the name of the file. Step 6, click on Save button. Your file is saved with the name you entered with .docx extension and location you have chosen. तो अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव करना है, सबसे पहले आपको फाइल टैब पे क्लिक कर लेना है, बैक स्टेज व्यू आपका अपीयर हो जाएगा. आफ्टर दैट आपको सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करना है. सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको लोकेशन डिसाइड करनी है कहां पर आपको अपनी फाइल को सेव करके स्टोर करना है. जैसे ही आप ये कर लेंगे, सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. उसके बाद आपका फाइल नेम बॉक्स अपीयर होगा, वहां पर आपको जो भी फाइल का नाम देना है आप वो मेंशन कर देंगे. उसके बाद सेव बटन पे आप क्लिक कर देंगे. आपका जो भी फाइल है वो .docx एक्सटेंशन के नाम से सेव हो जाएगा. Opening an existing document. When you wait to work in a saved file, then you can open it again and do your work or continue your work again in the saved file. To open an existing document, follow the given steps. Step 1, open File tab and the backstage view appears. Step 2, click on Open option and a window appears. Step 3, a number of recent files appears on the right side of the window. If you want to open any of these files, click on it to open the file, or click the browse option and open dialog box appears. Select the required file and click open button, then the particular file will be ओपन. तो अब आपको अगर एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, सपोज आप कुछ काम कर रहे हैं, बीच में आपको रुकना पड़ रहा है, आपने आधा काम करके उसको सेव कर दिया है, अब आपको इसी डॉक्यूमेंट को अगर ओपन करना है तो सबसे पहले आप फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, बैक स्टेज व्यू आपका अपीयर हो जाएगा. आपको ओपन पे क्लिक करना है. आप ओपन करने के बाद आपकी एक विंडो अपीयर हो जाएगी. जैसे ही ये विंडो अपीयर होगी, आपकी रिसेंट जितनी भी फाइल्स होंगी वो आपकी सामने आपको रिफ्लेक्ट होने जाएंगी विंडो की राइट हैंड साइड पे. जो भी आपकी फाइल है आपको सिलेक्ट करनी है, आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी. या फिर आप सीधे ब्राउज ऑप्शन पर जाके ओपन डायलॉग बॉक्स आपका अपीयर होगा. जैसे ही आप ब्राउज ऑप्शन पे जाएंगे, उसके बाद आपका जो भी रिक्वायर्ड फाइल है उस पर क्लिक करने के बाद आपको ओपन पे क्लिक कर देना है, आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा. Exiting MS Word. To close or exit MS Word, click the close button located at the top right corner of the Word window. If the document is already saved, it will be closed. Otherwise, a prompt appears on the screen to save and exit the file. Click on Save if you want to save it for future, and if you don't want to save it, click Don't Save. अगर आपको अपना डॉक्यूमेंट क्लोज करना है तो टॉप राइट कॉर्नर पे आपको क्लोज का एक ऑप्शन दिखाई देगा, क्रॉस मार्क, आपको उसको क्लोज कर देना है. अगर आपकी फाइल ऑलरेडी सेव्ड है तो ये सीधे सीधे आपका शट डाउन हो जाएगा. लेकिन अगर आपकी फाइल सेव नहीं है तो आपके पास एक प्रॉम्प्ट आएगा सेव करने का. अगर आपको फाइल को सेव करना है तो आप सेव फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट शट डाउन होगा. अदरवाइज अगर आपको नहीं करनी है वो सेव तो आप कर देंगे डोंट सेव पे क्लिक, तो आपकी फाइल सेव नहीं होगी और डॉक्यूमेंट शट डाउन हो जाएगा. Keyboard shortcuts. Use the following key combinations to perform the task directly. Ctrl+N to open a new document, Ctrl+S to save the document, F12 to open Save As dialog box, Ctrl+O to open the Open dialog box, Alt+F4 to close MS Word. तो कुछ आपके शॉर्टकट कीज होते हैं, जैसे कि आपका Ctrl+N, इससे आपका न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है. Ctrl+O, इससे आप कोई भी आपको डॉक्यूमेंट ओपन करना है आप ओपन कर सकते हैं. F12 अगर आप सीधे क्लिक करते हैं तो आपका सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है. सिमिलरली अगर Ctrl+F4 पे आप क्लिक करते हैं तो आपका जो भी आपका डॉक्यूमेंट है या प्रोग्राम खुल रखा है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा. Let's revise. MS Word is a commonly used word processing software. A word processor is an application software that is used to type and format text on a computer. You can create, open, save and close documents in MS Word 2016. You can exit MS Word by simply clicking on the close button. तो आपका जो MS Word है ये एक word processing software है जो बहुत ही widely use होता है. इसमें आप बहुत सारे टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, फाइल को सेव कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में ला सकते हैं. और अगर आपको ये डॉक्यूमेंट शट डाउन करना है, बंद करना है, सिंपली यू हैव टू क्लिक ऑन द
क्लोज बटन. सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज आपको खुद से करनी है.